Hi guys, what's up? तो कैसे हैं आप सब? So this is channel 10M Expert IAS and this is our geography class 11th course going on. So this is the chapter 9. We have covered all the past chapters in the last videos. So we will start in this class from the chapter 9, solar radiation, heat balance and temperature. Okay, so let's start. We will read here by line and understand the basic meanings of all the terms and the concepts. Do you feel any air around you? Do you know that we live in a bottom of the huge pile of air? We inhale and exhales, but we feel the air when it is in motion. It means air in motion is wind. Okay. So first of all, we need to understand this. We are always surrounded by the air, but we never feel it unless it flew. Okay, so when the air is in motion, that is wind. Okay, air is in motion is called wind. You have already learned about the fact that earth is surrounded by air and all around. The envelope of the air is atmosphere, which is composed of natural gases. These gases support life over the earth's surface. Okay, in air there are many natural gases, and because of these natural gases we have a living environment over the earth's surface. The earth receives almost all its energy from the sun. The earth in turn radiates back to the space the energy received from the sun. As a result, the earth neither warms up nor it does cold over a period of time. Okay, we imagine sometimes that we are getting constant energy from the sun, then why the earth is not getting heated up, but that's not so, because the receiving is also contrast by the reflection of the earth of the same solar radiation that we are receiving. Thus the amount of the heat received by different parts of the earth is not the same. The variation causes pressure differences in the atmosphere. पूरे अर्थ पे एक ही तरह से सोलर रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं हमारे अर्थ में ऑन द डिफरेंट लेयर्स. दिस लीड टू द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेस वी नो व्हेन देयर इज अ differences, wind flows from high pressure area to the low pressure area, and because of this, so first of all we will read the adding solar radiation. The earth surface receives most of its energy in short wavelength. ठीक है, तो the solar radiation we are receiving from the earth is incoming in short wavelength, and when it reflect back it go away in long wavelength. The energy received by the earth is known as incoming solar radiation, which is termed as insolation. Okay, incoming solar radiation which is in short wavelength. Okay, आने वाली जो होती है उसे short wavelength की फॉर्म में आती है और जाने वाली long wavelength की फॉर्म में जाती है. As the earth is the geoid resembling a sphere, the sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercepts a very small proportion of the sun's energy. ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो एक जियोइड स्फीयर में है, तो वो अर्थ जो इंटरसेप्ट करता है वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन करता है सन्स एनर्जी का. ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर. ठीक है, आपको ये ऐसे पर्टिकुलर फिगर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन ड्यू टू द वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ठीक है, जो अर्थ और सन में डिफरेंस है उसकी वजह से जो सोलर हम रिसीव करते हैं एटमॉस्फेयर में उसका भी डिफरेंस होता है. ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज द फास्टेस्ट फ्रॉम द सन on 152 मिलियन किलोमीटर ऑन 4 जुलाई. ओके, जो अर्थ फास्टेस्ट होता है सन से, ठीक है, जिसे हम एपीलियन बोलते हैं. ठीक है, एपीलियन APHELION. एपीलियन क्या होता है कि जब अर्थ और सन का डिफरेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, और ऐसे इसका अपोजिट होता है 3 जनवरी पे जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा क्लोज में होती है, उसे हम पेरिहीलियन बोलते हैं. ठीक है, हमें पता है कि अर्थ सन का राउंड लगा रही है, तो जब फारदेस्ट होती है तो उसे एपीलियन बोलते हैं, जो क्लोजेस्ट होता है उसे पेरिहीलियन बोलते हैं. आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा. इसमें आपको एक अपोजिट ट्रिक याद रख के चलिए कि जब ए है, ए वैसे सबसे स्टार्टिंग में आता है, लेकिन इसमें ए जो एपीलियन वो फारदेस्ट के लिए यूज हुआ है, तो ये अपोजिट है. Therefore, the annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. Okay. जो 3rd जनवरी में जो सबसे पास होगा, जब वो सबसे पास होगा तो आप एक तरीके से देखिए कि जॉइड स्फीयर की तरफ से है तो वो अपना रेडिएशन ज्यादा अर्थ को मिलेगा एज कंपेयर टू द जब वो फारदेस्ट होगा. हाउएवर द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट इज मार्क्ड बाय द अदर फैक्टर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सी एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. लेकिन ये जो अलग अलग चीजें हैं इनकी वजह से भी जो सोलर का रेडिएशन है वो इफेक्ट होता है. तो वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसोलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे इन सीजन एंड इन अ ईयर. ठीक है, जो वेरिएशन है ना वो एक डे के हिसाब से भी चेंज होता है, ईयर के हिसाब से भी, सीजन के हिसाब से भी. ओके,
द फैक्टर्स दैट कॉजेज दिस वेरिएशन इन इंसोलेशन आर, तो हमें याद रखना है कि जो फैक्टर्स उस इंसोलेशन को वेरी करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ रोटेट हो रहा है ऑन इट्स एक्सिस में, ठीक है। अर्थ एक तो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, और दूसरा जो अर्थ अपने खुद के एक्सिस में रोटेट हो रहा है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, ठीक है, जो सन की रेज है वो अर्थ को कितना कवर कर रही है, कितने इंक्लाइन पर आ रही है। द लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे क्या है। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सपोज देयर आर सो मेनी डार्क डेंस क्लाउड्स, सो वो एक तरीके से, या फिर ह्यूज सल्फर डाइऑक्साइड लेयर, तो उसकी वजह से जो सनरेज है वो उसको बीट करके अर्थ की तरफ नहीं आ पा रही है, तो इसलिए द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पेक्ट्स, द लास्ट टू हाउएवर लेस इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो कौन कौन से हो गया, रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, डे ए लेंथ हो गया, ट्रांसपेरेंसी एंड कन्फिगरेशन ऑफ लैंड। द फैक्ट दैट अर्थ एक्सिस कैन Earth's axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of its orbits around the sun have a great influence on the amount of insolation received at a different latitude, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि अर्थ जो है वो एक तरीके से बिल्कुल 180 डिग्री या फिर ऐसे जीरो एक्सिस पर नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा इंक्लाइंड है, ठीक है। जो जियोइड सरफेस है वो थोड़ा बेंड है, तो उसको एंगल को हम 66.5 डिग्री की बेंडिंग में बोलते हैं, और जिसकी वजह से जो इंक्लिनेशन होता है उसका इफेक्ट होता है अर्थ पर। द सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे होता है। दिस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, ओके। अब आपने 8th और 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा कि जो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। द हायर द लैटिट्यूड, द हायर जितना लैटिट्यूड होगा, the less is the angle they make with the surface of the earth resulting in the slant sun rays, ठीक है। the higher the latitude, जितना ज्यादा लैटिट्यूड हायर होगा, द लेस इज द एंगल दे मेक, ठीक है, उतना ही एंगल वो कम मेक करेगा विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन द स्लैंट सरफेस। उस स्लैंट सरफेस स्लैंट सन रेज आएंगी। द एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज, ठीक है। जो एरिया जैसे वर्टिकल रेज तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरेगा, लेकिन जो स्लैंट है एक तरीके से जो अम्ब्रेला फॉर्म में काफी तरफ से जा रही है, तो वो ज्यादा ये होगा। इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट इज डिक्रीजेस। जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतना जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और फिर एक पर्टिकुलर एरिया पे कम एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू द रेज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट कर रही है। मोरओवर द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। और जब स्लैंट रेज मतलब जैसे जो ऐसे टेढ़ी रेज होंगी, ऐसे जाएंगी यहाँ तक, जैसे यहाँ से सन आ रही है तो यहाँ से एक रेज आ रही है, यहाँ से एक रेज आ रही है, तो उनको जो थिक एटमॉस्फेयर होगा उसको फेस करना पड़ेगा, जिसमें जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन बहुत ज्यादा फॉर्म में होता है। द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ओके। द इनकमिंग शॉर्ट वेव जो हमारी तरफ आ रही है, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस जो एटमॉस्फेयर में पास होके तब अर्थ के ऊपर आती है विद इन द ट्रोपोस्फेयर, ओके। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं ऐसे। विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर्स, ओजोन एंड अदर गैस एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो मोस्टली रेडिएशन को कंज्यूम कर लेता है। वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन ट्रोपोस्फेयर स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई, ठीक है। अब जैसे ही उसने करा तो वाटर वेपर्स ने करा तो उसे रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, जिसकी वजह से एक विजिबल स्पेक्ट्रम शो होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर स्काई में मिलता है। द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन हो रहा है जो कि एटमॉस्फेयर में हो गया है, उसी की वजह से है कि हमें एट द डाउन ऑफ द सन हमें दिखता है कि वो रेड कलर की फॉर्म में या फिर ऑरेंज कलर का शेड देता है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस, द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 watt per meter square in the tropics to about 70 watt per meter square in the poles, ठीक है। ये इस रेंज में जो होता है वो डिफर करता है। Maximum insolation is received over the subtropical desert where the cloudiness is the least. Maximum जो होता है वो subtropical desert पे होता है, ओके, जहाँ पे क्लाउड बहुत कम होते हैं। subtropical deserts के ऊपर डेजर्ट होता है, डेजर्ट पे होता है। मीन्स 27.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर वाला एरिया। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन फ्रॉम द ट्रॉपिक, जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन। द इंसोलेशन सेम लैटिट्यूड में इंसोलेशन जो होता है वो मोर कॉन्टिनेंट में होता है देन ओवर द ओशन। इन विंटर द मिडिल एंड द हाई लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। विंटर में जो मिडिल और हाई लैटिट्यूड होते हैं वो लेस रेडिएशन होता है
देन इन समर, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि विंटर जब होता है तो मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स जो होंगे रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर, जितना समर में रिसीव करते हैं उससे कम कम रिसीव करेंगे। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। द अर्थ आफ्टर बीइंग heated by the insolation transmit the heat to the atmosphere layers near to the earth in a long wave form, ठीक है। वो अर्थ जो है वो ट्रांसमिटेड बैक लॉन्ग वेव फॉर्म में करता है। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर्स इन द कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर्स आल्सो गेट हीटेड, ठीक है। एक तरीके से आप ये देखिए कि जैसे अर्थ हीट हुआ तो उसके जो एयर है बिल्कुल अबव, सबसे पहले वो हीट होगी। अब उसके वजह से जो उस एयर के अबव एयर है, जैसे A1 हीट हो गई, अब A2 हीट होगी बिकॉज ऑफ द A1, तो इसको हम कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। एंड द अपर लेयर इन कांटेक्ट विद लोअर एयर, ठीक है। जैसे जैसे कांटेक्ट में चीजें हैं तो वो हीट पास होती रहती है, कंडक्शन। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ द अनइक्वल टेंपरेचर एयर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर बॉडी, ठीक है। जब वो कांटेक्ट में होंगी, इसका कंडीशंस क्या है कंडक्शन की, वो कांटेक्ट में होंगी और जो होती है वो डिफरेंशिएबल टेंपरेचर होगा दोनों बॉडीज में। The transfer of the heat continues until both the bodies attain the same temperature or the contact is broken. Conduction is important in heating the lower layers of the atmosphere. The air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of the current and the further transmit the heat of the atmosphere, ठीक है। जैसे ही एयर हीट होगी ना, अपने एयर की ये फीचर होता है, जैसे ही वो हीट होती है तो वो लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो बहुत ही लाइटर हो जाती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो डेंस नहीं रहते। और जैसे वो स्कैटर्ड होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, तो ठीक है। जैसी हीट एटमॉस्फेयर में होगी तो ऊपर की तरफ भागेगी। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। वर्टिकल हीटिंग को हम कन्वेक्शन बोलते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ। द एयर इन कांटेक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ द करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कन्वेक्शन बोलते हैं। द कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, सिर्फ कन्वेक्शन उसी में होता है, ठीक है। हमने ऊपर कंडक्शन पढ़ा और यहाँ पे कन्वेक्शन पढ़ा। कंडक्शन में बॉडी के अंदर जो हीट ना पास होती है और यहाँ पे जो होती है इन फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट, इसे इधर ट्रांसमिशन होता है हीट में का एटमॉस्फेयर के अंदर। The transfer of the heat through horizontal movement of the air is called advection। अब जब अभी हमने सारा वर्टिकल पढ़ा, अब जब हॉरिजॉन्टल होता है उसको एडवेक्शन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट इन मिडिल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ द डायनल डे एंड नाइट वेरिएशन इन डे डेली वेदर कैन कॉज बाय द एडवेक्शन अलोन, ठीक है। जो एडवेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और ये मोर इंपॉर्टेंट होता है देन इन द वर्टिकल में। इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलर इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स कॉल्ड लू इज द आउटकम ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो उसका एक एडवेक्शन का एग्जांपल क्या है कि जो लू होती हैं, जो लू हमारे यहाँ चलती हैं, उसे हम एडवेक्शन फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। अब नाउ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो टेरिटरी, जो हमारे लैंड की वजह से रेडिएशन हो रहा है, द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव फॉर्म एंड हीट ऑफ द सरफेस। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। वही चीज जो हमने अभी पहले बताई। द एनर्जी हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्लू फ्रॉम बैक, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। जो एनर्जी अर्थ से वापस जा रही है उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस पर्टिकुलर बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो जो लॉन्ग वेव जा रही है वो एब्जॉर्ब कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। Thus the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation. The atmosphere in turn radiates and transmits heat to the space. Finally the amount of heat received from the sun is returned to the space, thus by maintaining constant temperature, ठीक है। जितना आया वापस वो सारा स्पेस में चला गया, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द टेम्परेचर रहता है। हीट बजट हम आपको अभी एक थोड़ी से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी समझाएंगे कैसे होता है। अब फिगर 9.2 वो shows the heat budget of the planet Earth। heat budget कैसे होता है? हम पहले इसे थ्योरी फॉर्म में समझते हैं। The Earth as a whole, the Earth as a whole does not accumulate or lose heat, it maintains its temperature, ठीक है। ना वो accumulate करता है ना वो लूज करता है, वो अपना टेम्परेचर जो होता है अर्थ वो मेंटेन करता हुआ रहता है। दिस कैन हैपन ओनली इफ अमाउंट ऑफ, ये क्यों होगा? ये इसका रीजन कैसे होगा कि जितना हमारा इंसोलेशन मिल रहा है और जितना हमारा आइसोलेशन जैसे बाहर की तरफ जा रहा है वो बैलेंस फॉर्म में होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो हम अब एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में समझते हैं कैसे ये हो सकता है। कंसीडर्ड दैट द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%, ओके। जो इंसोलेशन हमें टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में मिला वो 100% है। आप परसेंट को छोड़ के न्यूमेरिकल फिगर लीजिए, 100 है। व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड एंड अक्रॉस। अब जैसे वो एटमॉस्फेयर में पास होगा तो कुछ रिफ्लेक्ट होंगे, स्कैटर्ड होगा और एब्जॉर्ब्ड होगा। ओनली द रिमेनिंग part reaches the earth surface. Roughly 35 units are reflected back to the space even before reaching the earth surface, ठीक है। अब उस 100 में से 35 अर्थ को टच करे ही बिना रिफ्लेक्ट हो गया,
ठीक है, अब हमारा कितना बचा 65। अब पहले ये देखिए ऑफ दीज उस 35 का 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स। 27 ऑफ उस 35 का 27, तो जो 27 है वो टॉप ऑफ द क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर चला गया। 2 यूनिट फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया ऑफ द अर्थ, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बेडो ऑफ द अर्थ। और ठीक है 2, ठीक है, और जो 2 है वो सपोज करिए कि स्नो और आइस से के चला गया और बाकी जो है वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो जितना जो अल्बेडो ऑफ द अर्थ एक टर्म है वो क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन, जो हमारा रेडिएशन मिला है उसको रिफ्लेक्टेड अमाउंट जो होगा उसे अल्बेडो ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 35 यूज हो चुका था, अब यहाँ पे 65 बचा जो अर्थ की तरफ आ रहा है। द रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब्ड होगा 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर। उस 65 में से 14 जो होगा वो विद इन एटमॉस्फेयर हो जाएगा एब्जॉर्ब। अब बचे 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस। अब इवेंचुअली लास्ट में जो अर्थ सरफेस को मिला है वो 51 मिला है, ठीक है। 14 तो एटमॉस्फेयर ने कर दिया, 35 वो बाहर की बाहर ही चला गया। द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अर्थ को 51 मिला और अर्थ ने 51 ही रेडिएट बैक कर दिया। उसका उस 51 का जो अर्थ रेडिएट बैक कर रहा है, 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली, ठीक है। 17 उस 51 का जो अर्थ रेडिएट बैक कर रहा है लॉन्ग वेवलेंथ में, उसका 17 जो है वो उसने डायरेक्टली स्पेस में भेज दिया। और रिमेनिंग 34 आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। अब जो रिमेनिंग 34 था वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। 6 यूनिट बाय डायरेक्टली एटमॉस्फेयर, 9 थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस एंड 19 थ्रू लेटरल हीट ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेयर ने पहले कितना करा था 14, और यहाँ पे जो है फिर एटमॉस्फेयर ने आते हुए 14 करा, फिर जाते हुए 34 कर लिया। अब क्या है 48 यूनिट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। 14 फ्रॉम इंसोलेशन, 13 फ्रॉम रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो 48 जो हुआ वो एटमॉस्फेयर ने कराए। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आल्सो रेडिएट बैक इनटू स्पेस, thus the total radiation returning from the earth and in the atmosphere respectively 17 plus 48 equals to 65। ये 17 कहाँ से आया, जो उसने रेडिएट होने के बाद जो अर्थ पे मिला उसने डायरेक्ट जो है वो स्पेस में भेज दिया। 17 ये हुआ और 48 जो हमारा एटमॉस्फेयर में कंज्यूम हो गया 14 प्लस 34 विच बैलेंसेस द टोटल 65 यूनिट रिसीव फ्रॉम द सन। और वही और हमारी एंड में टर्म आ गई 65 जो कि एक्चुअली हमें रिसीव हुई थी इन द फर्स्ट हैंड। ओके, ये उसको डायग्राम की तरह शो करके बता रखा है कि 100 यहाँ पे रिसीव हुआ, 34 एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, 17 एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, ये उनको और बाइफर्केशन दे रखा है अंदर के अंदर। अब हम ये आपको सिर्फ एक समझाने का मॉड्यूल था कि कैसे जो होता है हमारा अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस, as explained earlier, there are variation in the amount of the radiation received at the earth's surface. Some part of the earth has surplus radiation balance while other part has deficit. Figure 9.3 depicts the latitudinal variation in the net radiation at बैलेंस ऑफ द अर्थ। अब हम आपको यहाँ पे जो बताते हैं रेडिएशन में क्या डिफरेंस आता है द एटमॉस्फेयर सिस्टम। द फिगर शोज दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ द नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड द रीजन नियर द पोल्स हैव डेफिसिट, ठीक है। जो रेडिएशन होगा, अब जैसे पोल्स हुआ, पोल्स वो फारदेस्ट अवे होते हैं तो उसमें स्लैंट रेज आती है। जब स्लैंट रेज आती है तो उनकी इतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी एक तरीके से डायरेक्ट रेज जो पोल्स और ट्रॉपिक एरिया पे पड़ती हैं। तो यहीं पे बता रहा है कि 40 डिग्रीज जो नॉर्थ और साउथ होगा वो मोर हीट कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू दी जो स्लैंट रेज पोल्स पर आ रही हैं, जिसकी वजह से वहां पे हीट का जो है डिफरेंस आएगा। द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द टॉपिक इज redistributed poleward and as a result the tropics do not get aggressively heated due to accumulation of the exit or high latitude get frozen due to excess deficit। now हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। the interaction of the insolation with the atmosphere and the earth surface creates heat which is measured in terms of temperature, ठीक है। अब जितना हमें हीट मिल रही है ना, हम उसको मेजर कैसे करेंगे कि इस एरिया में इतनी हीट है, इस एरिया में इतनी हीट है, उसकी वजह से वो मेजर होता है इन टेम्परेचर फॉर्म। While heat represents the molecular movement of the particle comprising a substance, the temperature is the measurement of the degree of how hot a thing is। हीट हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट कितना है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि कितना कोल्ड और कितना हॉट है उस डिग्री में, एक पर्टिकुलर डिग्री में। Factors controlling temperature distribution. The temperature of the air at any place is influenced by the latitude of the place। अब आप इन चीज़ को याद रख लीजिएगा, ये सारी चीज़ प्लीज डू रिमेंबर इट कि क्या क्या चीज़ें किसी भी एरिया के टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, सेकंड द एल्टीट्यूड, थर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो हम एक एक करके टर्म्स पढ़ते हैं। द लैटिट्यूड, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब कि वो अर्थ में किस लैटिट्यूड पर आ रहा है, तो उस पर जो अर्थ की रेज है वो स्लैंटली रिसीव हो रही है या किसी एंगल से रिसीव हो रही है या डायरेक्ट वर्टिकली रिसीव हो रही है, तो वो डिपेंड करता है। सेकंड द एल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, therefore the places near the sea level record high temperature than the places situated at the high elevation, क्योंकि we all know कि माउंटेन्स पे जाके जो होती है हम फाइंड करते हैं कि वहाँ पे एयर कूल रहती है, तो उसकी वजह से लैटिट्यूड एल्टीट्यूड। अब हमारा आगे थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी।
Another factor that influence the temperature is the location of the place with respect to the sea. Compared to the land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. ठीक है, compare to the land, the sea get heated slowly. आप ये बात को भी याद रखिएगा, जो land के compare में जो होता है वो sea होता है. sea गर्म भी कम देर में होता है और ठंडा भी देर में होता है. The sea gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up and cool down quickly. Therefore, the variation in the temperature over the sea is less compared to the land. ठीक है, जो variation होगी sea में वो as compared to the land बहुत कम होगी. The places situated near the sea comes under the moderation influence of the sea. इसी की वजह से जो places near sea होंगी वो जो हैं वो जो रेडिएशन होगा, जो मॉडरेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होगा, वो उसके कंपेयर में आके उसमें इतना डिफरेंसेस नहीं होगा. एयर मास एंड ओशन करंट्स. ठीक है, ये तीन हमारा हो गया. अब सेकंड है, फोर्थ हमारा द प्रेजेंस ऑफ द वार्म एंड ओल्ड ओशन करंट, एंड फिफ्थ है लोकल एस्पेक्ट्स. एयर मास एंड ओशन करंट, लाइक द लैंड एंड द सी ब्रीजेस, द पासेज ऑफ द एयर मास आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर. द प्लेसेस व्हिच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म एयर मासेस एक्सपीरियंसेस higher temperature and the places that comes in the cold air masses experiences low temperature. ठीक है, एयर मास एंड ओशन करंट हम अपनी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो जो अपने बहुत सारे ओशन करंट्स फ्लू हो रहे होते हैं अपने ओशंस में, तो जिसकी वजह से वो लैंड बाउंड्री पर टच करते हैं तो वहाँ के लोकल एरिया को इफेक्ट जरूर करते हैं. ऐसे ही हमारा लोकल एरिया की वहाँ का लोकल एरिया में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कैन वेल बी अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई. The temperature distribution is generally shown on the map of the map with the help of isotherms. ठीक है, अब isotherms क्या होते हैं? isotherms एक हम लाइन बनाते हैं. isotherms are the lines joining place of equal temperature. ठीक है, isotherms एक तरीके से लाइन होती है, वो उन डॉटेड कनेक्ट्स को करती है जहां पे इक्वल टेम्परेचर सीन हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नथिंग. ठीक है, इस isotherms are lines joining places having equal temperature, shows that the distribution of the surface air temperature in month of January and July. ठीक है, ये जैसे आप अभी देख लें -25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कैसे लाइन चल रही है, तो ये शो कर दिया कि इस जहाँ से ये लाइन जा रही है इस एरिया पे ये -25 डिग्री टेम्परेचर ही है. In general, the effect of the latitude on the temperature is well pronounced on the map. Also, isotherms are generally parallel to the latitude. ठीक है, अब हम ये नोटिस करें कि जो isotherms हैं वो generally parallel to the latitudes होते हैं. That deviation from the general trend is more pronounced in January than in July. ठीक है, ये हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस जनवरी के मंथ में है. अब ये जनवरी के मंथ में थोड़ा सा नोटिस करिए, और फिर ये है जुलाई के मंथ में. ये जुलाई के मंथ में तो डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है टेम्परेचर डिफरेंस है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आइसोथर्म्स हैं एज कम्पेयर टू द दिस एरिया. ठीक है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड का एरिया है वर्ल्ड मैप में वो सदर्न के कंपेयर में ज्यादा है. Hence the effect of the land masses and the ocean current as well pronounced. यहाँ पे इफेक्ट भी ज्यादा होता है. इन जनवरी the isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. जनवरी में जो आइसोथर्म्स होता है वो डेविएट होता है नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट की. आप ओशन में देखिए कि ओशन में नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो आइसोथर्म्स ओशन में नॉर्थ की तरफ जाएगा, कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ जाएगा जनवरी में. इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द वार्म ओशन करंट, एक वार्म ओशन करंट होता है गल्फ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नदर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड द नॉर्थ. ठीक है, वो यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स होता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है जिसकी वजह से वो ओशन में उनको वार्म कर देता है, जिसकी वजह से ये अबव जा रहा है. ओवर द लैंड एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली, और लैंड में टेम्परेचर डिक्रीज शार्पली हो जाता है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड आ रहा है. इट इज मच प्रोनाउंस्ड इन द साइबेरियन प्लेन. दिस मीन जनवरी टेम्परेचर अलोंग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज -20 डिग्री सेल्सियस बोथ एट द. ये आपको फिगर की तरफ बताया, इसको आपको पढ़ने की इतना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा. इट इज मच प्रोनाउंस्ड इन द साइबेरियन प्लेन. यहाँ पे भी अब ये दिखा रहा है जनवरी एंड जुलाई के कॉन्ट्रास्ट में. नाउ द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो ओशन का इफेक्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में वेल प्रोनाउंस्ड होता है. Here the isotherms are more or less parallel to the latitudes in variation to temperature is generally gradual than in the northern hemisphere. The isotherms of year run parallel to the in July. ठीक है, ये वैसे southern hemisphere में होता है, इसको आपको याद ऐसे नोटिस करने की कोई जरूरत नहीं है. बस आप ये चीज याद रखिएगा कि जो isotherms होते हैं वो एक रेस की तरफ होते हैं, और जितने isotherms पास में मिलेंगे उसका मतलब ये होगा कि उतने पास में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा हो रही हैं. ठीक है, अगर जैसे 25 डिग्री है फिर 10 किलोमीटर बाद 24 डिग्री है तो वो एक कांस्टेंट आइसोथर्म चलता हुआ जाएगा. Okay, so this is here we end our chapter 10. We will start our chapter 11 chapter 9, and we'll start our chapter 10 in the next class. Hope you like it. Do watch it, and thank you. Take care.